know these languages. Some of the Westerners have actually translated these texts into the English language for the benefit of people like me who can read them in the English language and English language. तो इसका एक मूल जो है ये वास्तु पुरुषा और वास्तु पुरुष मंडला है. As our mythology goes, Lord Shiva was in war with a particular demon, and then from that his sweat had fallen on the surface of the earth, and this Vastu Purusha took birth, and he is himself a demon who has been creating a lot of havoc on the people who were on the earth. And it is believed that when all the people went and prayed, so several gods were to pin down this Vastu Purusha, who is a demon, to the surface of the earth so that he does not create any disturbance. So इसलिए जब हम गृह प्रवेश करते हैं या शंकुस्थापना करते हैं तो उस समय पे जितने भी मंत्र वहां पे उच्चारण करते हैं हम, they are all to invoke all these deities and to request them to, क्योंकि जब हम एक भवन का निर्माण करते हैं हम बहुत सारे पेड़ों को निकाल देते हैं, वहां पे बहुत सारे कीड़े हैं और भी जो जीव ग्रह है वहां पे उन सबको हम निकाल रहे हैं, उन सबको we are killing so many germs and so many environment. Actually, Vastu Shastra is more than a building science, it is also an environmental science. Because we are having respect for the plants, we are having respect for the Mother Earth, we are having respect for the environment, the other jivis, the other pranas who are also living in the surroundings. Dharma. It has got nothing to do with A God or B God or C God in which some of you believe or some of you don't believe. It is more to do with a way of living and a feeling that we have for the other fellow beings. So, Vastu Shastra has also a lot to do with the cardinal directions: north, south, east, west, and the northeast, southeast, southwest, and northwest. Uttara, Dakshina, Purva, and Paschima. So, north, south, east, west. Northeast is referred to as either Isha on the right hand side and west is on the left hand side. So, northwest is the Vayuvya sthana. Vayu northwest में है. तो यहाँ पे अग्नि southeast में है. So the various gods have all played, which is it is called a mandala. So there is a Vastu Purusha mandala, and this Vastu Purusha is also supposed to be sleeping for some portion of the year, is supposed to be moving also in different parts of the year because we have different seasons. And the central portion, the central 9 squares, is called the Brahmasthana. So this is again all symbolism. ये किसने बताया है, किसने देखा है? Those questions have no answers really in that sense, because this is what is written in the texts. And we जब भी हम पूजा करते हैं तो हम आवाहयामि, मतलब we are invoking the presence of the Lord and all the deities. तो जहाँ पे गृह प्रवेश का पूजा भी करते हैं तो we invoke all these gods, and there are different shlokas for invoking all these gods and for praying to all these gods. So these are all these form the basis. And in all these shastras which are related to the directions, northeast or Ishanya Kona is referred to the place of water, or southeast Agneya Kona is referred to the Agni, southwest is the Nairitya Kona, northwest is the Vayuvya. So the different elements, the Panchabhutas, and their location in terms of space, these are all symbolized by this kind of a mandala which is there.
And there are again different versions of this mandala, different number of squares, and what should be located where is often a question that is in the minds of all of us when we want to build a house. Now, some of you may say that एक प्लॉट में एक मकान बनाना, वो फैशन तो आजकल खत्म होते जा रहा है, वो हम कर नहीं रहे हैं. अभी जिस होटल में हम रुके हुए हैं वो तो 25वीं मंजिल में हमने हमारा कमरा है. तो today the concepts are all completely changing. Today we don't, very few people are lucky enough to have a plot of land on which they build a house. So the Shastra says that Agneya Kona में अग्नि का आपको रखना चाहिए. So you have your kitchen in the southeast corner of the house, or you have your well on the northeastern side of the plot, क्योंकि वो जल का स्थान है. So what is the meaning of this? This is a kind of a living in harmony with nature and with the natural forces. अब नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? ये सारे सवाल लोग पूछेंगे अक्सर. साउथ वेस्ट कॉर्नर में द मास्टर ऑफ द हाउस, द ओनर, he has to stay in the southwestern, his master bedroom should be there in the southwest corner of the house. The brahmasthana, central part of the house, is should be left vacant. वहां पे कुछ नहीं बनाना चाहिए, खाली रखना चाहिए वहां पे. तो इस तरीके से there are some fundamental principles which have been prescribed in all these texts, which go into several volumes. अगर उन सब का अगर निचोड़ हम निकालेंगे तो ये चीजें निकल के आते हैं. इनको हम कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो प्लॉट्स हमें मिलते हैं, you don't always get a square or a rectangle plot. You get in different shapes and sizes. Then what do? These are all problems which you face in the real life context. And also today land itself is just not available. So now there are also so many mathematical calculations that have been prescribed in all these texts. Aya, Vyar, Ksha, Yoni, Vara, Tithi. And also all of us are very different. Every human being is different. आपका लग्न अलग है, आपका राशि अलग है, आपका नक्षत्र अलग है. So should my house, there is nowadays there is a disease in our country that मेरा north facing plot चाहिए. North facing plot है तो I don't mind paying more and purchasing it. ये दक्षिण मुख का प्लॉट है तो इसका हम ज्यादा पैसे नहीं देंगे आपको. तो ये बहुत सारे भ्रम फैला हुआ है लोगों ने कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट इज बेटर, साउथ फेसिंग प्लॉट इज नॉट बेटर, वेस्ट फेसिंग प्लॉट इज नॉट गुड. ऐसा ये एक गलत फहमी है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल हु इज द ओनर ऑफ द प्लॉट. तो आपका क्या है, कन्या राशि है, आपका कुंभ राशि है, क्या है, और नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का लॉर्ड क्या है. तो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र ये दोनों इंटर रिलेटेड है. So depending upon the individual person's horoscope, the facing of the plot should be in one particular direction. So there are so many intricacies. In modern day, again, you may say that अब इतना सारा कैलकुलेशन करना कैसा करेंगे हम. So जहाँ पे संभव है वहां कर सकते हैं, जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं कर पाएंगे. डायमेंशंस क्या होना चाहिए प्लॉट का, ये भी बताया गया है कि इसमें ये अयादि शतवर्ग जो है ना, इसमें if the length is so much and if the breadth is so much, उसको मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो हैप्पीनेस, रिमाइंडर 1 आएगा तो ये, रिमाइंडर 2 आएगा तो ये. इतने लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस हैं. अब ये सारा हम आज की तारीख में नहीं करते. वी जस्ट गो अहेड एंड बड़ी मुश्किल से प्लॉट मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने पैसा इकट्ठा किया है, जीपीएफ से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, जो पैसा है जो मिल रहा है फटाफट खरीद लो, जमीन का दाम बढ़ रहा है. तो इतना कैलकुलेशन करना मुश्किल है. लेकिन पंडित जी इज अवेलेबल इजीली, तो हम पूजा पाठ तक हम सीमित हैं अभी. हाउ टू सेलेक्ट द साइट, व्हाट काइंड ऑफ द सॉइल सैंपल शुड बी देयर, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस, व्हाट शुड बी द फेसिंग एज पर योर हॉरोस्कोप, वो देखना बहुत मुश्किल हो रहा है. लेकिन when it comes to the शंकुस्थापना और the गृह प्रवेश, there it is easy, क्योंकि वहां पे आपको पूजा करना है
तो पंडित जी आएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप आई नीड ओनली नॉर्थ फेसिंग प्लॉट, बट मेरा वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, मैं क्या करूं? बट पीपल आर गोइंग अहेड, व्हाट इज टू बी डन? क्योंकि उसमें भी एक इंटरनल वो है कि आपका हॉरोस्कोप में there are so many combinations. सुख के लिए भूमि भवन, वाहन के लिए चौथी घर है, फॉर्च्यून के लिए नवा घर है, लाभ के लिए 11वीं घर है। तो आपका 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर है, 12 राशि है, तो कौन सा प्लैनेट कहाँ पे लगा हुआ है, आपका महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, जिस समय पे आप ये कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी देखना है कि आपका भाग्य में है कि नहीं मकान का ओनरशिप होना, या उसमें उससे सुख का प्राप्ति होगा नहीं होगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका जो पिछले जन्म में जो कर्म किया है आपने, उसका बेसिस में इस जन्म में आपको ज्यादा घर मिलेंगे, या एक घर मिलेगा, या घर मिलेगा ही नहीं, या आपके पास संपत्ति होगा लेकिन सुख नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें, ये कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, ये सारे देखेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अब सारा दिन आप कैलकुलेशन करते रहोगे कि तो फिर घर कब बनाओगे आप? होना चाहिए, और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसका भी बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारे फॉर्मूला बताए गए। ये जो डोर का जो साइज है उसका भी कैलकुलेशन बताया गया। लेकिन आज की तारीख में हम राजरघाट में जाते हैं, राजरहाट में आपका वो कोई वो अंबुजा नियोटिया ने जो फ्लैट बनाया है, वो तो 200 फ्लैट्स, सबका डोर का साइज एक ही है। तो वो आपके लिए फिट आएगा नहीं आएगा, आप तोड़ के मेरा साइज का मैं बनाऊंगा तो हो नहीं सकता। तो आज की तारीख में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जहां पे आप, इट इज लाइक अ आला कार्ट मेन्यू इन अ रेस्टोरेंट, या वहां पे लगा हुआ है, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो आप भूखा बैठिए, या फिर अलग से अपना अपना चॉइस का मंगवा लीजिए। तो उसी तरीके से फिर मुहूर्त बला भी है कि किस समय पे आपको शंकुस्थापना करना चाहिए, किस समय पे आपको प्रवेश करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें ये सब इसमें दिए हुए हैं, लेकिन उसको हम फॉलो करें या ना करें, मॉडर्न डे में हमारे पास चॉइसेस कम है, हमारे पास समय कम है, हर चीज हमको भागादौड़ी में चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो इसलिए जो वास्तुशास्त्र ग्रंथों में जो जितने भी चीजें वहां पे लिखे हुए हैं, उनको धीरे धीरे हमने पीछे रख दिया है, उनको भूल गए हैं कन्वीनियंटली, और हम आधुनिक काल में विद द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ते हुए हम चला गया है। लेकिन दैट इज द वे इट इज इट राइट और रॉन्ग? Should we do that or not? Should we go back to our ancient culture? Should we rediscover our roots? क्योंकि उसमें बताया है कि अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, संतान चाहिए, तो आपको ये सारे आपको करना चाहिए फिर। लेकिन वो करने के लिए ना हमारे पास समय है, ना धन है, ना उतना जमीन अवेलेबल है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है। तो उससे कैसा निकलना है is a very big question. अब ये सिर्फ ये शास्त्र जो है सिर्फ एक मकान के लिए, एक घर के लिए नहीं है, तो शहर के लिए भी बनाया गया कि अलग अलग व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ सिटी। ये एक प्रस्तारा प्लान का एक मैंने ये नक्शा एक दिखाया है, लेकिन अलग अलग है, कारमुखा, स्वास्तिका, पद्म का, अलग अलग। सो एसेंशियली ये क्या है, अगर मॉडर्न डे में भी देखेंगे सिटी प्लान में, ये लेके कोई नहीं बना रहे, जैसा मर्जी वैसा मर्जी वो लोग बना रहे हैं। Nobody is following these town planning principles. तो लेकिन शहर तो चल रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ, जिंदगी तो आगे बढ़ रही है, तो कहीं पे सब खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए इन अ डिफरेंट प्लेन अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये ऐसा क्यों बना है, एसेंशियली टू ब्रिंग एन ऑर्डर। क्योंकि जब 500 people, 1000 people, 1 lakh people, 10 lakh people, if they have to live in a place, there has to be an order. एक सड़क होगा, उसमें लेफ्ट साइड में जाएंगे इस डायरेक्शन वाले, उधर से लेफ्ट उधर आएंगे। जब सब लोग
ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर एक लाल बत्ती होगा, लाल बत्ती में हमको रुकना पड़ेगा, गार्बेज को निकलना पड़ेगा, पानी को देना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है? इट इज एन ऑर्डर, हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर इन अ chaotic सिचुएशन। पहले जमाने में तो इतना जनसंख्या नहीं था, तो there were few number of people, so it was very easy. Every house you can have a well in the northeastern corner. Today in every house you cannot have a well, a groundwater table नीचे चला गया। So there are all kinds of those problems. So टाउन प्लानिंग के लिए भी ये सब दिए हुए हैं, लेकिन ये सब फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यू कांट एक्वायर लैंड नाउडेज। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1898 का है, उसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, फिर बाद में उसको पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया है। नाउ वी हैव अ टोटली डिफरेंट एक्ट। अंडर दैट एक्ट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्वायर लैंड, बिकॉज इट इज नॉट ओनली गिविंग मार्केट कॉम्पनसेशन, बट आपको बहुत सारी चीजें और करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की तारीख में यू आर ओनली डूइंग व्हाट इज कॉल्ड लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम। तो एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये सारी चीजें भी किताबों में ये सब लिखा हुआ है, बट वी आर अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉलोइंग दिस। वी कुड हैव फॉलोड दिस, जैसा ये पूरा राजरहाट, it is several thousands of hectares of land that has been acquired here by the government, so they could have planned like this, but maybe they didn't have the idea, they didn't have the knowledge, so they planned it in a very modern manner. क्योंकि ये मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न टाउन प्लानिंग इंडिया में कहां से आया? क्योंकि जब ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास था, तो इसको हमने कहां पे खो लिया, और अभी जो हम कर रहे हैं ये हमने कहां से सीख लिया? ये आगे okay, so essentially the considerations for building in our country have been climate, because राजस्थान में जाएंगे आप तो वहां पे maximum amount of time there is so much amount of heat, whereas in Kerala or Andhra, which are coastal areas, there is so much amount of humidity. So when you have humidity you require more air movement. तो आप केरला में किसी का घर में जाएंगे तो आपको खिड़कियां बड़े बड़े मिलेंगी आपको, क्योंकि एयर हैज टू कम इन, ब्रीज हैज टू कम इन। तो हम पंखा क्यों डालते हैं? ताकि हवा चले, द स्वेटिंग विल कम डाउन। इन राजस्थान देयर इज नो ह्यूमिडिटी बट देयर इज हीट, सो यू हैव टू पुट द हीट आउट। तो इसलिए रातियां जो है छोटे छोटे होते हैं, जाली होता है वहां पे। राजस्थान में अक्सर आपने अगर हवा महल का, जयपुर में आपने देखा होगा, जालियां हैं वहां पे। तो जालियां क्यों हैं वहां पे? सो देयर इज, इफ सम ऑफ यू हैव स्टडीड फिजिक्स, फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है, इट इज कॉल्ड पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट क्या है कि यू blow from one side and then you have a porous material in between. On the other side, when the air flows through the pores and comes onto the other side, the air will become cool. ये experiment आप कर सकते हैं। So our ancient architects 300 years back, when they built all these havelis in Rajasthan, they put these jalis जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। So when you get the desert winds which are very hot, in the inside it is very cool, and even the windows are very very small. You don't have large windows. So ये साइंटिफिकली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से किया है, लेकिन ज्यादा हम लोगों ने वो उस खोज में हम गए नहीं। Now we are leaving all that and we are cladding our buildings only with glass or something, and चारों तरफ बंद कर दिया और एसी ऑन कर दिया। So we have now moved away from all those things. अभी वापस जाने में पता नहीं कितने 100 साल लग जाएंगे वापस उसमें जाने में, क्योंकि पूरा माइंड सेट जो है वो चेंज होना है। इफ यू गो टू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड द मुल्गफ। ईरान में वगैरह वहां पे भी गर्मी होता है, तो वो छत के ऊपर एक होता है, और जो बाहर का जो ब्रीज है वो आके नीचे आपको कूल ब्रीज आ जाता है उसमें। आप ईरान में कई शहरों में आप जाएंगे, इस्फहान करके एक शहर है ईरान में,
वहां पे जाएंगे तो वो सारा बिल्डिंग्स में एक ऐसा एक चिमनी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक जाली लगा होता है और ये सारा ब्रीज को कैप्चर करके दे आर कॉल्ड विंड कैचर्स और कमरे में आपको कूल एयर लेके आते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. बट टुडे व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग इट? वो फॉलो करेंगे तो फिर इनका बिजनेस डाउन हो जाएगा. सो इट इज समथिंग लाइक द pharmaceutical industry or any other industry. There is a big movement against using solar or against using these other kinds of automobiles क्योंकि ये सब बंद होने वाला है very soon. ये industries खत्म हो जाएंगे once the oil reserves are totally over. So there are those kinds of politics which are happening. But anyway, so the functional requirements of a courtyard. आप राजस्थान में जाएंगे आपको ट्रेडिशनल हाउसेस में सेंट्रल कोर्टयार्ड एक मिलेगा. आप केरला में भी जाएंगे आपको वहां पे भी एक सेंट्रल courtyard. Why these courtyards are there? Because in most parts of the country, humidity apart, it is still very warm. So when you have a courtyard, the courtyard is invariably shaded. So when it is shaded, it will be very cool, bright. Direct sunlight नहीं मिलेगा, indirect lighting मिलेगा वहां पे. So indirect lighting मिलेगा. Indirect lighting is always better than a direct sunlighting. So you have a courtyard, number one. Number two, when the children are very, very small, the lady of the house can do the cooking and she can still keep a watch क्योंकि वो बच्चा जो है वो खेलने के लिए आंगन है लेकिन वो घर के बाहर जा नहीं सकता. उसी के अंदर रहेगा और खेलता रहेगा और you can manage your children also. So everything in our Indian tradition has a multi-purpose. It is not एक काम के लिए नहीं है. एक काम करने से चार चीजें hit two birds or three birds with one stone. वो हमारा ट्रेडिशनल में हर जगह पे वो कॉन्सेप्ट है कि आपको एक काम करने से तीन चार लाभ मिलते हैं उससे. So everywhere you find that there is a courtyard concept, whether it is North India, South India, anywhere you go. Similarly, आपको जो ये गेबल रूफ कहते हैं, जो स्लोपिंग रूफ है, वो जहां पे बारिश ज्यादा होता है वहीं पे हमने ट्रेडिशनली उसको यूज किया. राजस्थान में आपको गेबल रूफ कहीं नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे बारिश होता ही नहीं ज्यादातर. तो you can utilize the terrace for some other purpose. So functionality in a building is very important. In addition to, so many of these जो traditions हमारे आए हैं, they also take into account the functional requirements. Similarly, security all around. They all have a wall around because when the enemy comes, you can close the gates. And then you have the walls so that the people who are inside are very safe and secure. So ये सारा considerations, these पुणे में आप सदाशिव पेट, नारायण पेट, बहुत सारे पेट है वहां पे. अहमदाबाद में पोल्स में जा सकते हैं. साउथ इंडिया में अग्रहारा में जा सकते हैं. चेट्टीनाड मैंशंस तमिलनाडु में आप देख सकते हैं. राजस्थान में हवेलीज देख सकते हैं या केरला में नालुकिट्टू देख सकते हैं. So these traditional historic areas are still there for us to see. अभी पूरा खत्म नहीं किया हमने, कुछ बचे हुए हैं. तो इनका जरा चित्र हम देखेंगे कि ये कटरा है, ये एंट्रेंस है. अगर ये गेट बंद हो गया तो इसके अंदर जो 200, 300, 400 जो फैमिलीज हैं, they are all safe. So because of the invasions in the earlier days, they used to devise this kind of building system. And also आजकल हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा, एक इधर भी है. हम क्या कर रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं हमको. तो पुराने जमाने में शहरों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था. The cities were compact. आज की तारीख में एक मूवमेंट है, मॉडर्न मूवमेंट. इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सिटीज. क्योंकि अभी आप राजरहाट में देखेंगे तो पता नहीं, एक बिल्डिंग उधर है, एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग सड़क में कोई जा रहा है, कोई छेड़खानी किया, कुछ किया तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा. Whereas in the olden days we had compact cities. So there was a social control. उसको कहते हैं अंग्रेजी में eyes on the street. So you don't, somebody from somewhere, from some window is looking at who is walking in the street, who is going out in the street. अगर आप किसी में एक में चले जाए, तुरंत पता चल जाएगा कि ये कोई बाहर का आदमी अंदर घुस गया. There is a social control of the physical space. Social control of the physical space without the need of a gadget called the CCTV camera. कि पहले जमाने में ये हम ऐसा करते थे, आज भी कर सकते हैं,
अगर हमारा मन है और हमारा जानकारी है, हमारा एटीट्यूड है। लेकिन अभी हमने जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में हम सब हर चीज दूर 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 कर दिया, तो आपको पता नहीं आपका नेबर कौन है, क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ आपको पता नहीं। तो ये अलग कटरों का अलग अलग नाम है। सो इफ यू गो टू द स्ट्रीट्स, पीपल आर लाइक दिस। तो वहां पे वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं लोग, तो जैसा आप एंटर करेंगे लोग आपको देख लेंगे। आज हम क्यों पसंद नहीं करते हैं इसको? क्योंकि हमारा जो बड़ा गाड़ी है, जो क्या है, फॉर्च्यूनर, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है ना, तो दिखाना है सबको, तो सबसे बड़ा ले लिया, इतना बड़ा लारी जैसा पहिया है उसका, तो ये अंदर नहीं घुसेगा। तो सबको कैसे हम बताएं कि भाई हम अमीर बन गए? तो पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं था कि आप किसी का घर में जाए तो बाहर से ज्यादा कोई दिखावा नहीं है, सबका घर तकरीबन एक जैसा ही है। और इसमें आप जितना मर्जी आप इसमें चले जाइए, देयर इज अ टोटल शेड, देयर इज अ नेचुरल शेडिंग ऑफ द स्ट्रीट्स इन द ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स। सो आराम से आप पैदल जा सकते हैं, और कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देख रहा है वहां पे, आप ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज द कोर्टयार्ड। इन द कोर्टयार्ड पीपल आर लिविंग, एंड यू कैन इजिली कम्युनिकेट, एंड इवन बाय लुकिंग एट पीपल, हम आप सब लोग हमको देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर इन दैट सेंस, लेकिन आपका चेहरे पे एक्सप्रेशन है, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बिना बात किए हुए कम्युनिकेशन हो जाता है इन दीज कोर्टयार्ड्स। एंड बहुत सारे ये सब अभी भी बचा हुआ है ये कोर्टयार्ड्स में। तो एक अभी एक धर्मपुरा करके एक है पुरानी दिल्ली में, एक ऐसा पुराना हवेली एक आदमी ने खरीद लिया है, और उसको कम्प्लीटली कुछ 1 करोड़ रुपया उसने खर्च करके एक बहुत अच्छा एक होटल बना दिया है, और फॉरेनर्स आके वहां पे 10-10 हजार रुपया देके वहां पे होटल का दे यूज एज रूम्स, और वहां पे डिनर वगैरह वो सब करते हैं। तो कई जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ये पुराना है इसको तोड़ दो, ये सब अभी मॉडर्न हमें चाहिए। तो ये मॉडर्न का मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना आ गया है हमारे ऊपर कि हम इन सब को चीजों को हम तोड़ते जा रहे हैं, और इनका जो ब्यूटी है उसको वी आर अनेबल टू प्रिजर्व, और इसका एक फंक्शनल वैल्यू भी है। These are all the different petas और वाडास ऑफ पुणे। पुणे में जाइए, कहीं पे भी जाइए पूरा देश में, ये ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स आर देयर। देयर इज आल्सो यूसेज ऑफ लॉट ऑफ टिम्बर इन दिस। पुराने जमाने में वी वर यूजिंग अ लॉट ऑफ टिम्बर, बट टुडे व्हाई वी कैन नॉट यूज टिम्बर इज बिकॉज वी कैन नॉट कट ट्रीज नाउ, क्योंकि इतने सारे हम पेड़ कट चुके हैं कि अब आगे काटने में there is a big danger. So now and then now the new materials have come, steel, cement, concrete, ये सारे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि it is easier for us to procure these, and so therefore we are not using those materials. But buildings were also expressions of art, जो हमारा ट्रेडिशनल में, इनफैक्ट ये जितने भी जो 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 पुराने ग्रंथ है हमारे, इन सब में there is also something called iconography, मतलब क्या क्या मोटिव्स कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए उसमें। आई एम टॉकिंग मोस्टली अबाउट रेसिडेंशियल वास्तु हियर, बट अगर मंदिर बनाना है तो उसके लिए बिल्कुल अलग सेट ऑफ रूल्स है। टेम्पल वास्तु, पैलेसेस बनाना है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं। तो क्या आर्टिस्टिक डेकोरेशन क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ये सब उसमें डिस्क्रिप्शंस हैं। बट टुडे आवर बिल्डिंग्स आर ऑल प्लेन। आपको कोई टेम्पल में ऐसा प्लेन वॉल नहीं दिखेगा, यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर होंगे। आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, सो मेनी थिंग्स आर ऑल डिस्क्राइब्ड देयर, कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, और नीचे सारे गाय है, और सारा विलेजर्स वो सब नीचे खड़े हैं। सो यू आर डिस्क्राइबिंग, देयर इज अ स्टोरी टेलिंग इन द बिल्डिंग। हियर देयर इज नो स्टोरी टेलिंग इन द बिल्डिंग, एवरीथिंग इज ऑल प्लेन एंड सिंपल। एक तो वो आसान है, कम पैसा में हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और हमें सिर्फ वो है। तो नाउ बिल्डिंग्स आर नो लॉन्गर वर्क्स ऑफ आर्ट। So where are the sculptures today? There are no sculptors. Sculptor is a dead art. There are no sculptors who can today अगर मुझे करवाना है तो बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे अभी बचे हुए हैं। और एक और प्रिंसिपल है, that is the principle of
what we call as central axis, and what is on the left side is the same as what is on the right side. तो पुराने जमाने में बिल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे, that is because we have followed a square or rectangular वास्तु पुरुष मंडला. एक central axis है, left side में, right side में. बाहर से देखेंगे, so there is some composition. उसमें एक पद्धति है, जैसा ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में या ट्रेडिशनल म्यूजिक में देयर इज अ सिस्टम, देयर आर रूल्स. अगर एक कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आपको एक गाना पेश करना है तो थिंग, बट इन द मॉडर्न डे बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, जो जैसा मर्जी, जिसका मर्जी जो जैसा बना ले वो बना ले. सो देयरफॉर देयर इज नो ब्यूटी, देयर इज नो एस्थेटिक्स is a word that is totally absent and missing in the modern day building. क्योंकि हमने बिल्डिंग को as an art नहीं देख रहे हैं अभी, बिल्डिंग as a purely functional हमने देखा है. So you can make the building for a function, but also you can incorporate certain artistic elements in it. Then what will happen? Even the artist will get some employment. But today we are not doing it. So if you go to South Indian, these are all, इसका सेंटर में जाएंगे तो एक कोर्टयार्ड होगा उसके अंदर, from where you get indirect lighting, and there is also a lot of safety and security there, and you can be in direct contact. आप गर्मी का मौसम में वहां पे सो भी सकते हैं under the sky. Lot of things are there, and you are right. And then यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए लोग यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं तो सड़क में. So there is a public space, semi-private space. फिर अंदर जाएंगे तो फिर private space. So there is a gradual movement of spaces and their functions, and use of this clay tiles. If you go to the southern part of Karnataka, which is the northern part of Kerala, there used to be at one time more than 100 Mangalore tile factories around Mangalore. आज की तारीख में वहां जाएंगे तो 5-6 फैक्ट्री बचे हुए हैं. That is because the clay deposits are all exhausted now. You don't have much of clay available. तो आजकल ऐसा टाइल्स जो है कुछ और मटेरियल से बना रहे हैं. तो टुडे इंडिया वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल्स. यू कांट यूज टिम्बर. और जो टिम्बर कॉलम्स जो बनाए हैं इतना सुंदर, अभी हम कहां से लाएंगे ये टिम्बर को? These are the Chettinad mansions in Tamil Nadu with the central courtyard. Traditions transmit कैसा होगा from grandmother to the grandchild? क्योंकि सब अपना अपना उसमें चले गए. तो दिस विल ब्रिंग पीपल टुगेदर. सब लोग इकट्ठा बैठ के एक जगह पे खाना खाना, शेयर करना, तो वो सारा संस्कार वो इकोसिस्टम आज की तारीख में मिसिंग है, क्योंकि हमने बिल्डिंग को उस तरीके से नहीं बनाया. बिल्डिंग को जैसा तैसा बना के कुछ करके हम चला गया, तो इसलिए हमारा समाज भी बिखर गए हैं because of all these kinds of. So there is a relationship between our tradition and our society and our buildings. So we have to recognize that. ये सारा देखिए, वो जो मैंने बताया, जो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में है, there is a balance in the composition of the aesthetics of the building. अब आज के मॉडर्न डे में nobody is bothered. किसी को मतलब नहीं है उतना फाइननेस, एस्थेटिक अपील जो है वो किसी को लेना देना नहीं है. So if you preserve, you can preserve like this, and there are many which are preserved, but we also don't have the luxury of preserving or luxury of having such wide verandas or using such ornate doors. तो हमने एक सिंपल एक रेडीमेड डोर मार्केट में मिलता है, उसको फटाफट खरीद के रिक्शा में ले आते हैं, यहाँ चिपका देते हैं. तो ये एक निजी प्रॉब्लम है आज की तारीख में. बट एट द सेम टाइम कैन वी डू समथिंग इज आल्सो अ क्वेश्चन. केरला में जाएंगे तो यहाँ पे वही वाला प्रिंसिपल है, कहीं पे जाली लगाया तो कहीं पे कुछ और किया, बट एसेंशियली इट इज अलाउइंग द एयर टू पास एंड गिविंग ए कंफर्टेबल. एक भवन किस लिए है? हम लोगों को अपना अंदर कंफर्टेबली हम अपना काम करें, उसके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, ये हमें चाहिए. तो बट यू आल्सो डू इट इन अ नाइस मैनर, in a artistic manner.
where you bring in the painting, the art, the craft, the सारी चीजें मिला के आप उसमें जोड़ के एक चीज बनाइए, then it becomes a something which is of some value. Value कैसा आता है? Value तभी तो आता है इसमें value. So these are all examples, but today we don't have such large parcels of land, and we are unable to do this. So this is the plan of a Nalukettu house from Kerala, where you have a central courtyard and you have the columns, and then you have an eternal veranda there, and also spaces, the informality of spaces. अब ये जो drawing room, dining room, bedroom, चाइल्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ये सारा ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है. पहले जमाने में ये सब नहीं होता था. एटलीस्ट आई वाज born and brought up in this kind of a traditional house where there was nothing specified that ये आपका रूम है, ये आपका रूम है. ये तो आज की तारीख में बच्चे बोलते हैं ये मेरा रूम है, ये पापा का रूम है, ये उनका रूम है. ये ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग कहाँ से आया? उसमें ड्राइंग तो करते नहीं है. ये अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने आपको दिया है ड्राइंग रूम. So we have left our traditional informal way. So if the father has to meet the son, then you have to take an appointment. What time I can meet you? क्योंकि अमेरिका में वही कल्चर है, आज की तारीख में भी वही कल्चर है. आप बिना अपॉइंटमेंट का आप अपना बेटा को नहीं मिल सकते. तो हमारा देश में वो वाला सिस्टम नहीं है. तो पहले हम रिश्तेदार को मिलना है तो हम वैसे चले जाते थे. ये राजस्थानी जो हवेलियां वगैरह है, तो फॉर्म्स अलग अलग. यहाँ पे there is more usage of stone because stone is locally available material. In Kerala, timber because timber is the locally available material. If you go to Goa, वहाँ पे laterite stone मिलता है. तो ज्यादातर buildings laterite से बना हुआ है. If you go to Andhra Pradesh, you have condylite stones. If you go to Karnataka, you have granite stones. They are locally available. आज की तारीख में there is something called a green building movement. वो ग्रीन बिल्डिंग में अगर आप मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हो, राजरहाट में एक होटल बना रहे हो, यू वांट टू गेट अ रेटिंग दैट इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपको. दे विल कम एंड एग्जामिन एंड सी कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो. तो इफ यू आर यूजिंग कोटा स्टोन, देन इट मे नॉट गेट सो मेनी पॉइंट्स बिकॉज राजस्थान कोटा से आप लेके आ रहे हो पत्थर यहाँ डालने के लिए. और इफ यू आर यूजिंग इटालियन मार्बल, कहीं इंपोर्टेड करके आप लेके आ रहे हो. बट इफ यू आर यूजिंग अ लोकली अवेलेबल स्टोन, यू विल गेट मोर मार्क्स. Because today we are talking about green buildings. मतलब energy consumption in the entire building should be kept to the minimum. Then it's a green building. फिर उसको आपको नंबर मिलेंगे, उसको आपको कुछ incentives भी मिलेंगे. So today we are trying to revive the environment. So these are all the ये वही वाला कोर्टयार्ड है जो ये राजस्थान में है. तो यहाँ पे मोटिव्स अलग हैं. अब यही वाला कोर्टयार्ड केरला में तो कुछ और होगा इसमें डिजाइन, या तमिलनाडु में कुछ और डिजाइन होगा. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ा वो वेरिएशंस हैं. बट एसेंशियली हैविंग द ब्रह्मस्थान एज अ फ्री सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड, वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं. ये वही वाला कोर्टयार्ड है जो हमने यहाँ पे तुलसी का प्लांट रखा हुआ है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है. नाउ द वेस्टर्नर्स हैव कम टू आवर कंट्री. ब्रिटिश आ गए हैं, फ्रेंच आ गए हैं. पौंडीचेरी में जाए तो फ्रेंच आए हैं, डच है, पोर्चुगीज है. पूरा गोवा में जितने भी बने हुए पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस से बने हुए हैं. तो अब ये सब लोग आ गए हैं तो अपना वो स्टाइल लेके आ गए हैं. तो दिस इज अ colonial British bungalow where they have a different way of doing things. क्योंकि in Great Britain they build like this, so in our country also they are building like this. ये सारा colonial bungalows हैं. These are the British columns. जो स्तंभ है ना वहां पे, that is a typical British column. अगर आप हमारा हिंदू टेम्पल में जाके देखेंगे तो वहां पे भी स्तंभ है, लेकिन उसका रूपरेखा बिल्कुल अलग होगा क्योंकि वो हमारा स्तंभ है. तो उसमें हमने जो कार्विंग किया है वहां पे कोई हाथी है, कोई कुछ है, तो हमारा एलिमेंट्स रखा हुआ है वहां पे. तो यहाँ पे ये ब्रिटिश का कॉलम है. तो ब्रिटिश यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जाएंगे तो उनके पास 4-5 कॉलम्स का डिजाइन है. देयर इज समथिंग कॉल्ड डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर, कोरिंथियन ऑर्डर. उनका यूरोपियन स्टाइल है, वो लेके आगे हैं यहाँ पे उन्होंने ये डाल दिया है. तो पूरा ऑल ओवर यूरोप कॉलम्स विल बी वन ऑफ दीज. आप कॉलम को देख के बता सकते हैं कि ये डोरिक है या ये ज्यादातर ये सारा डोरिक वाले. जो आयोनिक होगा वो थोड़ा ज्यादा
स्लाइटली डिफरेंट होगा, कोरिंथियन होगा तो और भी ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होगा उसमें। ये सारा वही ब्रिटिश वाले। बट वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट ये मैंने इसलिए लगा है क्योंकि इवन द ब्रिटिश हैव रियलाइज्ड दैट इफ यू हैव अ फ्लोर टू सीलिंग हाइट ऑफ एटलीस्ट 14 feet द रूम्स विल बी वेरी कूल। कोई भी पुराने जमाने का बिल्डिंग में आप जाके देख लीजिए, द हाइट फ्रॉम द फ्लोर टू सीलिंग इन एनी रूम इज ऑलवेज वेरी हाई। दैट इज बिकॉज एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, कोल्ड एयर इज वेरी हेवी और नीचे चली जाती है, हॉट एयर इज वेरी लाइट ऊपर चले जाता है। तो आदमी का हाइट कितना है, रूम का हाइट कितना होना चाहिए, ताकि जब ऑल ऑफ अस आर हियर वी आर ऑल एमिटिंग बॉडी हीट, so the air in this room is becoming warm, so that warm air should go above our heads and then फिर नीचे से फिर cool air आएगा, क्योंकि ये एक सर्कुलेशन बनेगा। तो इसलिए हमने वेंटिलेटर बनाया था, ताकि जो वार्म एयर है वो बाहर निकल जाएगा वेंटिलेटर से, तो कूल एयर इधर नीचे से आएगा, तो एक सर्कुलेशन होगा। पंखा का जरूरत नहीं है आपको, रूम अपने आप में कूल होगा। लेकिन आज हमने वो पैसा बचाने के लिए 12 फुट 14 फुट हम नहीं बना सकते हैं, चलो इसको 9 फुट बना दो, तो 9 फुट में फिर आपको एसी लगाना ही पड़ेगा या पंखा चलाना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर उसमें कंट्रोल होगा ही नहीं। सो वी हैव फॉरगॉटन ऑल आवर ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स। ये बिल्डिंग हाइट्स, प्रोपोर्शंस, ये सारा वास्तुशास्त्र किताबों में सब लिखा हुआ है, बट हमने उसको लाइब्रेरी में रख दिया, या कई चीज है ही नहीं। There are some books of Vastu Shastra which were found rotting in the Tanjavur temple in Tamil Nadu. उसको ब्रिटिशर्स ने निकाल के उसको पूरा ट्रांसलेट करके वो सारा करके फिर हमको दिया है, अनफॉर्चुनेटली, जो हम खुद ढूंढ नहीं पाए हैं। Of course, उसके बाद में there are some Indian scholars also, many Indian scholars have also read and translated all these original scriptures, but essentially ये फ्रेंच है पांडिचेरी में। पांडिचेरी इज ऑन द बे ऑफ बंगाल ईस्ट कोस्ट, इतना बारिश आती है वहां पे, लेकिन इन्होंने कोई सनशेड नहीं रखा है, क्योंकि फ्रांस में सनशेड नहीं रखते हैं। ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस है पांडिचेरी में, बिकॉज द फ्रेंच हैड कम एंड कॉलोनाइज्ड इन पांडिचेरी एंड इवन हियर। आपका कोलकाता से आगे जाएंगे आप तो यहाँ पे भी एक फ्रेंच सेटलमेंट है, का नाम अभी मैं बताता हूँ आपको, याद नहीं आ रहा है, चंदन नगर। तो चंदन नगर इज अ फ्रेंच सेटलमेंट, तो वहां पे भी जाएंगे तो आपको ये ब्राइट कलर्स वगैरह ये सब मिलेंगे, बट उनका हैबिट है कि दे डोंट पुट दिस, क्योंकि वहां पे सनलाइट चाहिए फ्रांस में। सो इफ यू गो टू मेनी प्लेसेस इन यूरोप, सनशेड नहीं होता है, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से धूप मिलती है, तो जितना ज्यादा धूप अंदर ला सकते हैं वो ला सकते हैं। लेकिन वही वाला खिड़की अब हम मॉडर्न डे में यूज कर रहे हैं, तो आवर रूम्स आर बिकमिंग वेरी वार्म, so we have to reduce the size of our windows, which we are not doing. So these are all from Pondicherry only. Portuguese, ये उस जमाने में शीशा नहीं होता था, so these are all the timber slots, and उसके बीच में जो लगा हुआ है, these are the sea shells. तो समुद्र से अगर आप सैंड में जाएंगे आपको सी शेल्स मिलेगा, तो बड़े बड़े साइज का सी शेल्स जो है उसके बीच में घुसा दिया है। They are translucent and they bring in the natural light from outside, so this is a window from Goa. This is a street from one of those places in Panjim. ये सारा गोवा का ही है। Now this is a movement called Art Deco. Art Deco is a movement, actually architectural styles in the Western context अगर आप देखेंगे तो ग्रीक, रोमन, सबसे पहले इजिप्शियन, उसके बाद रोमन, उसके बाद ग्रीक, उसके बाद there was a dark middle ages when arts died down, then there was a renaissance, then there was a Byzantine, and ये अलग अलग स्टाइल्स थे यूरोप में ऑल ओवर। फिर बाद में एक आर्ट डिको स्टाइल करके एक आया है। आर्ट डिको स्टाइल में ज्यादातर आपको प्लेन सरफेसेस मिलेंगे, लेकिन उसमें भी सम ऑर्नामेंटेशन विल स्टिल बी देयर, व्हिच इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। अगर आप मुंबई में जाएंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट डिको बिल्डिंग्स इज अवेलेबल इन
Mumbai along the Marine Drive. And in fact, even in Kolkata, on many streets, you will find these Art Deco buildings. In many places in Kolkata, you will find these Art Deco buildings, which are quite plain in terms of this thing. लेकिन फिर भी उसमें कुछ आर्टिस्टिक एलिमेंट्स वगैरह डाला हुआ है. एंड बहुत सारे ये पुराने घरों में जाके देखेंगे तो अभी भी आपको 12 फुट मिनिमम फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिलेगा. दिल्ली में एक बहुत पुराना कॉलोनी है, उसका नाम है सुंदर नगर. उसमें कोई भी घर में जाके देखेंगे तो कम से कम 12 फुट 13 फुट कम से कम फ्लोर टू सीलिंग हाइट है. उसमें एसी का कभी भी, इवन इन द वर्स्ट हीट इन दिल्ली, मैं गया है वहां पे, ज्यादा मुझे एसी की जरूरत नहीं. पंखा चलाओ, आराम से नीचे बैठो, तो इट इज वेरी कंफर्टेबल. एयर कंडीशनर का कोई जरूरत ही नहीं. बट टुडे वी आर not doing that. So these are all these Art Deco buildings which again follow many of the earlier principles. ये जो चार्ल्स वगैरह है मुंबई का. And then now we come to the modern day buildings are like this. तो इसमें जो कोई फॉर्म नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई जो मर्जी कलर लगाओ. पुराने जमाने में सारा घरों में we used to use only calcium carbonate, which is a substance which keeps the rooms very cool. उसको हम चूना बोलते हैं. सारा घरों में चूना ही लगता था बाहर, और हर साल लगता था. और उसमें या तो प्योर व्हाइट या फिर उसमें वो थोड़ा सा गोपी चंदन का जो रंग है, बस यही कलर होते थे. तो पूरा शहर जो है काफी सुंदर दिखता था. लेकिन जब से ये पेंट का कंपनियां आ गए हैं, तो दुनिया भर का कंपनी, कोई भी आदमी कोई भी कलर, मेरा घर है, मैं मेरा मर्जी है. तो मतलब एक अलग एस्थेटिक एक पैदा हो गया. अब ये सही है गलत है, कौन सा सुंदर लग रहा है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. अब आपको ये सुंदर लग रहा है या पहले का सुंदर लग रहा है, ये आपको कहना है. लेकिन अभी जो है, नाउ वी हैव मेड अ कंप्लीट मेस बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल. कहीं पे प्लास्टिक बकेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे क्या है. तो ये कंप्लीट हमने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, सिस्टम को छोड़ दिया, रूल्स को छोड़ दिया. जैसा मर्जी वैसा हम करने लग गए हैं. कहीं पे एस्बेस्टोस शीट है, कहीं पे टिन शीट है. दिस कुड इवन बी इन राजस्थान स्लोपिंग रूफ. अच्छा लगता है, किसी ने कुछ बना दिया, जैसा चाहे वैसे बना दिया. अब किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है कि इसी स्टाइल में आपको बनाना है. जैसा पुराने जमाने में सब लोग सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा या सफेद धोती. तो अभी तो अब वी आर ऑल वेयरिंग डिफरेंट कलर्स. अपनी मर्जी है. मैंने आज ये वाला कलर चूज किया, तो अपना अपना मर्जी है. तो ये बिल्डिंग में भी ऐसा हो गया. इवन इन द बिल्डिंग वी हैव लेफ्ट दैट. जस्ट लाइक इवन इन म्यूजिक. अभी वो ट्रेडिशनल म्यूजिक कितने लोग सुनते हैं? ट्रेडिशनल म्यूजिक बहुत ही कम लोग सुनते हैं. कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, उसका ज्ञान कितने लोगों को है? कितने लोग, बहुत ही कम. रुचि ज्यादा जो है मॉडर्न म्यूजिक में. आप कुछ भी बजाते रहो और म्यूजिक बन जाती है. तो बिल्डिंग्स में भी ऐसा ही हो गया है आज की तारीख में कि आप कुछ भी लगा दो, वो बिल्डिंग बन गया है. तो ये एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, कंचनजंगा अपार्टमेंट्स इन मुंबई. एक्चुअली इट इज अ ड्यूप्ले. दो मंजिल का एक मकान है. So this is how now the modern day houses are. तो ग्राउंड फ्लोर में वो कार पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग, ये वो सब लगा दिया. और तो वी हैव मेड अ कंप्लीट मेस ऑफ सो मेनी थिंग्स. एंड ड्रेनेज वगैरह, आपको बहुत बच्चे लोग, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हिस्ट्री में, यूज्ड टू हैव वेरी गुड ड्रेन्स. तो आजकल कहीं ड्रेन आपको मिलते नहीं है. कई जगह पे कॉलोनी बस गए हैं, ड्रेनेज कभी बनाया नहीं हमने. तो वी हैव फॉरगॉटन ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ either building a house or fundamental principles of doing an entire layout of a few acres of land. तो सारा प्रिंसिपल्स हम छोड़ दिया है. तो अब वो किताबों में रह गया है, भाषण में रह गया है, ग्राउंड में जो मर्जी जैसा मर्जी हो रहा है. सो व्हाट डू वी डू? अब ऐसा ये बन रहे हैं. मल्टी स्टोर बिल्डिंग की ज्यादा जमीन नहीं है तो आपको 30 मंजिल, 40 मंजिल, 50 मंजिल ऊपर चले जाना चाहिए. अभी कोलकाता में पिछला महीने में आया था, तो वहां पे पार्क स्ट्रीट के पास एक वो बिल्डिंग है द 42. आप लोगों ने देखा होगा. तो वो द 42 में 62, इट इज नॉट 42 फ्लोर्स, इट इज 62 फ्लोर्स.
42 इज द नेम ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का नंबर है। मैंने पहले वही सोचा था, तो फिर जब हमने आर्किटेक्ट को पकड़ा और हमने बोला कि हमारा सारा स्टूडेंट्स आए थे, तो हमने बोला हमको दिखाओ, तो फिर उसने बताया कि 62 स्टोरीड बिल्डिंग है ये। अब 62 स्टोरीड का बिल्डिंग के अंदर आप जाके देखेंगे तो उसमें कितना टेक्नोलॉजी रखा हुआ है। अब अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग हिलेगा, तो उस हिलने को रोकने के लिए बड़े बड़े ह्यूज टैंक्स ऑफ वाटर आर केप्ट देयर एंड दोस टैंक्स ऑफ वाटर विल मूव। अगर बिल्डिंग ऐसा मूव हो रहा है तो वो पानी का टैंक इधर मूव करेगा, उसको बैलेंस करेगा। तो हमने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आपको लगता है कि कोई फैक्ट्री के अंदर चला गया। इफ यू गो टू द topmost floor, you will see the machinery that is there to control the internal temperature and उसका पानी का, उसका बिजली का, उसका आग लग गया तो वहां पे क्या होगा। तो ये सारे चीजों के लिए, so buildings are not buildings now, buildings are machines, buildings are machines। और उसका गार्बेज नीचे कैसे आएगा, वो पानी ऊपर कैसे जाएगा। अब आग लग गया तो उसके लिए अलग से, यू कांट से आज पानी नहीं आया, आज पानी नहीं आया तो आप नहाओ मत। लेकिन जब आग लग जाएगा, यू कांट से आज पानी नहीं आया, बुझाना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए स्टोरेज टैंक्स अलग से होते हैं। तो ये सारा बिल्डिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, बिल्डिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। अभी पीछे ऑन द टेलीविजन आप लोगों ने शायद देखा होगा, नोएडा में, दिल्ली के पास में 3-4 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसमें लिफ्ट ऊपर से छोड़ दिया और सीधा नीचे आके 8 लोग मर गए। There was one old lady who was taking her little child to one of the other floors, and the husband and the wife, they were thinking that ठीक है, दादी माँ जो है वो बच्चा को कहीं खेलने लेके गई है, तो 2-3 घंटे हो गए दादी माँ नहीं मिल रही है, तो कहाँ गया ये? She died in the lift. Lift has fallen from the top. That means there is no maintenance of the lift completely. वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसका लिफ्ट का कानून जो है वो इतना पुराना दैट कानून इज पेंडिंग इन द यूपी असेंबली फॉर सेवरल इयर्स नाउ। और इतने बार मैंने भी टीवी में बोला है, लेकिन वो कानून इज नॉट बीइंग मेड। चलो कानून नहीं है तो फिर भी आप रिपेयर तो कर सकते हो ना उसको, वो भी नहीं है। तो ये सब हम कहीं और पहुंच गए हैं अभी। सो अभी जो ट्रेंड है, पहले तो सिर्फ पत्थर में बनते थे, अभी कंक्रीट, ब्रिक, ग्लास ये सब आ गए हैं। ये कुछ पूरा कंक्रीट में बना हुआ है, क्योंकि ये एक स्टाइल है। ग्रेट आर्किटेक्ट कॉल्ड ली कॉर्बुजियर, जो चंडीगढ़ से, पूरा चंडीगढ़ का उन्होंने डिजाइन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने उनको लेके आया था फ्रॉम फ्रांस, ही वाज अ जर्मन पर्सन। तो उनको ये कंक्रीट से प्यार ज्यादा है, तो सारा उन्होंने बिल्डिंग चंडीगढ़ में कंक्रीट में बनाया है। तो उनका जो जितने भी आजकल बच्चे हैं वो सब कंक्रीट में, उनसे जो इंस्पायर होते हैं वो कंक्रीट में बनाते हैं। या कुछ ये गुजरात वगैरह में वो ईंटों में बनाते हैं। अब ईंट भी आजकल इट इज बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी नाउ, यू डोंट गेट गुड ब्रिक्स। अभी ये आप सब लोगों ने देखा होगा, इसको कोलकाता में ही है, ये एटमॉस्फेयर है इसका नाम, ठीक है ना। अच्छा, तो इधर एक बिल्डिंग है, उधर एक बिल्डिंग है, और दोनों के बीच में क्या लगाया है ये? ये सुंदर है मेरे हिसाब से जो भी है। अब आप बताइए, ये सुंदर है, आपको अच्छा लगता है? तो ये जो है ना, ये इसके ऊपर है। ये जो दोनों के बीच में जो ब्रिज बना है, वो ब्रिज ये है। वहां पे आप गोल्फ खेल सकते हैं, गोल्फ का बॉल नीचे नहीं गिरेगा, तो इसलिए वो पूरा वो सब लगा हुआ है। अब इतना सारा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं हम? तो वहीं जाके खेलना है हमें 30वीं 40वीं मंजिल में। तो आपका शास्त्र और वास्तु और वो सब गायब हो गया। अब जैसा मर्जी, जो मर्जी, जिसको टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या करना है। एक आपने वो रेस्टोरेंट देखा होगा, यहाँ से a few kilometers away there is one iconic restaurant ना, गोल वाला। हाँ, क्या नाम है इसका? हाँ, तो पिक्चर हम वहाँ पे खाना खाने गए थे हम सब लोग। तो खाना नीचे बनाते हैं और लिफ्ट में खाना को ले जाते हैं, और वहां पे आपको बिठा के खाना, और ऐसे हिलते रहता है कि पता नहीं कब हम क्या होने वाला है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं वहां पे। तो एक ऐसा जमाना आ गया है कि
हम कुछ ऐसा करें जो कभी नहीं हुआ हो पहले। तो ये एक अजीब सी चीज है। और आजकल ग्लास, हर जगह पे ग्लास ग्लास ग्लास, तो पूरा बिल्डिंग अभी ये ये सोच है ही नहीं। मतलब कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो अच्छा इसने ऐसा बनाया, चलो मैं भी बनाता हूँ ऐसे। तो एक मैड रश, वी आर लिविंग इन अ मैड वर्ल्ड where we don't know where we are going, why we are going, what we want to do, what we want to achieve. लाइफ तो उतना ही है, 70 80 90, उससे ज्यादा तो आदमी जी नहीं पाएगा। तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं ये सब? तो वो हम खूब बैठे हैं। तो और ये सिर्फ बिल्डिंग के क्षेत्र में नहीं है, चाहे वो कपड़ा में हो, फटी हुई कपड़े पहनना जो है आज फैशन। पहले तो भिखारी पहनता था फटी हुई कपड़े, तो आज आज वही लेटेस्ट फैशन हो गया। तो खाना में आप तो दो में पता नहीं अंडा डाल दिया, पता नहीं क्या क्या, एग डोसा। तो हर चीज में एक बदलाव बदलाव से ज्यादा है जो हो रहा है, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रेस हो, पोएट्री हो, कोई भी चीज हो, उसमें जो रूल बाउंड, जो सिस्टमैटिक, जो आपका छंदस वगैरह, वो सारा जो व्याकरण के लोग यहाँ बैठे हैं वो सब बताएंगे। तो अब उसका कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा भी आप मॉडर्न पोएट्री लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी ऑफ द रूल्स। तो ये ऐसा दुनिया में हम अभी आगे हैं। तो जो नहीं आ पाएंगे वो लोग ऐसा बसेंगे फिर। So that is the problem where we are, and we so everything has now got completely transformed and changed. We are coming to the end of the discussion. So policy है, हम सिर्फ as I said, I am talking only about residential architecture or housing. तो हाउसिंग पॉलिसी है, लेकिन हाउसिंग पॉलिसी में आप जिन चीजों के बारे में हमने अभी बात किया है, तो nobody, the policy doesn't talk about it. What is the importance of art, what is the importance of tradition, what is the importance of culture, what is the importance of preserving some of these things. इसका कोई जिक्र नहीं है और इसका कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है। तो कुछ लोग अपने आप अपना ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को कर रहे हैं। देयर इज एक संस्था है इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कुछ बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा धनराशि आपको डालना पड़ेगा। कौन डालेंगे, कहाँ से आएगा पैसा? तो देयर आर सम कॉर्पोरेट्स लाइक टाटास एंड सम पीपल, दे आर गिविंग द फंड्स। उनके पास बहुत पैसा है, चलो भाई 2 करोड़ ले लो, आप इस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाओ। तो सम ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स आर being renovated and preserved, and the traditional architectural styles are being preserved. लेकिन अगर आप पार्क स्ट्रीट चले जाएं, आप अपना बीबीडी बाग चले जाएं कोलकाता में, इतने सारे, हालांकि वो अंग्रेजी का क्यों ना हो बिल्डिंग्स, these are all beautiful buildings. Forget about whether it follows the traditional वास्तु शास्त्र or not. It is a beautiful, it is a piece of art. इसको क्यों नहीं हम प्रिजर्व करें? That is not happening. So अगर कोई प्रिजर्व्ड है, और रेंट कंट्रोल एक्ट की वजह से प्रिजर्व्ड है, क्योंकि आप टेनेंट को हटा नहीं सकते, बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते। तो वो रिग्रेसिव कुछ लेजिस्लेशन है, उसके वजह से वो बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट, बाय डायरेक्टली, नॉट बाय विल बट बाय डिफॉल्ट वो प्रिजर्व हो गया है। आप और हम जाके उसको देख सकते हैं। जिस दिन वो कानून जाएगा तो ये सब तोड़ के फिर दोबारा 60-70 का वो मॉडर्न जो है वो आ जाएंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मॉडर्न नहीं बनना चाहिए, हम चंद्रायन नहीं करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, ठीक है, वो भी है, उसका भी जगह है। लेकिन we should not forget our roots also, our traditions, our culture, from where we have come, and what makes Sanatan Dharma different from any other. And there is some value in it, not because we belong to this कि हमें ज्यादा इससे लगाव है, लेकिन इसमें एक वैल्यू है, इसमें एक जिंदगी, एक लाइफ का एक पर्पस है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें सुखी जीवन जीना है। तो एक हमारा एक, it is not a materialistic life. We have come here with a purpose. Every human being has come here with a purpose. You have to fulfill your purpose. You have to do dharma. What is dharma? तो ये सारा एक इकोसिस्टम, तो उससे हम बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बहुत सारा ये चैलेंजेस हैं। All these traditional things are all getting
out now. So how do we promote Bharatiya Vastu Vidya is the question. So somebody will say why we should promote Bharatiya. वो नहीं लिखा आपने, ठीक है? तो बहुत सारे सवाल हैं और सारे सवालों का जवाब नहीं है. बट देन अगर आपको लगे तो फिर हमें कुछ करना चाहिए इसमें. तो हम भी थोड़ा लगे हुए हैं इस चीजों में कि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा प्रेरित करें, बताएं, क्योंकि सोसाइटी हैज टू रिएक्ट. वन मैन कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड जो सोसाइटी चाहती है वही होता है, वही हो रहा है because of the awareness. So I think on this note I will thank the opportunity given my very dear friend Subramanian Sharma ji. मुझे एक मौका दिया है. It was by chance that I got associated with all the Sanskrit universities, Rashtriya Sanskrit Sansthan and the others also. फिर धीरे धीरे थोड़ा उधर का इधर का उधर ज्ञान का शेयरिंग होने लगा है. So that is how it is. So thank you very much for giving me this opportunity, and thank you to the principal and all the faculty, and for all of you for giving me a patient hearing. ये सुनने वाला आज कम मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, घंटों भर हम कर सकते हैं. तो 5 साल का एक मॉडर्न इंडिया में अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो 5 साल का एक कोर्स है आर्किटेक्चर. तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसमें एक आपको स्कोर मिलेगा ऑल इंडिया. फिर इट्स कॉल्ड जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो इंजीनियरिंग वगैरह का उसका होता है. देयर इज अनदर एग्जाम आल्सो व्हिच इज कॉल्ड नाटा, NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, NATA, नाटा. तो वो एग्जाम्स लेना पड़ेगा. फिर आपको एक आर्किटेक्चर कॉलेज में जाना पड़ेगा, 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा. लेकिन वहां पे ये वास्तुशास्त्र वगैरह ये सारी चीजें आपको नहीं सिखाएंगे. तो जो मॉडर्न बिल्डिंग वो सारी चीजें, तो वहां पे कोई वास्तुशास्त्र का डिपार्टमेंट है तो वहां पे कुछ सिखाते हैं, लेकिन दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स, दे आर नॉट इंजीनियर्स. तो एक बहुत एक गैप हो गया है. इन दोनों को जब तक हम नहीं मिलाएंगे फिर वो तालमेल नहीं बैठेगा, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो वो लोग, तो इसलिए वो पूजा पाठ तक सीमित है. ठीक है जी, वास्तु को होमा करना है, चलो बुलाइए, तो वो कर लिया, ठीक है. आप जी आप बैठिएगा, खड़ा होने की जरूरत नहीं है. There are many houses in North Calcutta which have their square courtyard. हाँ बिल्कुल, ठाकुरबाड़ी बहुत हमने देखा है यहाँ पे. There are many of them, and they are well preserved. In some places they are very well preserved. So I think on that count we should not worry about it. And secondly, I would like to you have talked about the industrial civilization. Well, they had a definite town planning system, but in spite of that, they have followed the Vastu. In spite of that, it collapsed. There are many reasons for that, but it collapsed. So, how can we prevent such collapse? Follow the Vastu system. And the third question is, I have been in Assam, and yet the rings of Restudy, they have maintained some their buildings, and the buildings are still, of course, it's all broken down, but the buildings are something you can understand that there exist buildings and they are very strong foundations. So what were the materials they used? They used bricks were there, but what was there? Join the bricks. These are the key points of the thing. जी सर ये डॉक्टर ऑपरेशन चक्रवर्ती हैं. ओके ये ओके एनवायरमेंट पे इनका बहुत काम. बहुत अच्छा है. तो देखिए, कंस्ट्रक्शन में देयर आर 2 प्रिंसिपल्स. कंस्ट्रक्शन
is based on two forces. One is called the force of compression and the other is the force of tension. अब ये छत खड़ी है तो force of tension is working here. That is why ये खड़ी है. अब ये दीवार खड़ी है तो force of compression में खड़ी है. So the balance of these two forces have to be there for a building to stand. And building में एक factor of safety भी होती है. So if you are having very large, thick walls, deep foundations, if the soil selection is right, if you have constructed on the right kind of a soil, ये सारे चीज जब देख के आप बनाते हैं, then buildings will last, like the pyramids have lasted. So एक तो उसका एक equilibrium भी है. There is something called stable equilibrium and unstable equilibrium. तो यहीं पे engineering, architecture, शास्त्रा, वेदांता, ये सारा इकट्ठा हो जाता है. तो जब we should know a little bit of all of these while we maintain our own expertise in a particular area to understand this. Traditional buildings में these things have all been adopted, so therefore they have lasted for a longer period of time. Where they have not followed these, then their life has been less. आज की तारीख में प्लास्टरिंग करते हैं, पता नहीं उसमें सीमेंट डाला नहीं डाला क्या किया, तो within a few years, it is not that we don't know the technology, it is a lack of ईमानदारी, it is a lack of ethics कि आपने वो ना सीमेंट डाला है ना वो ढंग से किया है ना कुछ. तो everybody is the contractor and वगैरह वगैरह ये सब हो रहा है. अगर आप ईमानदारी से properly अगर आप करेंगे, then buildings will last. Why can't you build today? You have much better technology today to build than you had at that point in time. You can do it, but you have to have the will. That is one thing. The second thing is, to a certain extent you can say, because many things are not known to us, but then definitely they had, otherwise they could not have built such complex structures. आप वहां पे जाइए, हम्पी विजयनगरा में चले जाइए तो वहां पे इतने सारे बनाए हैं. तो and go to Ellora, the Ellora temple is a marvel. जो ऊपर से करते 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 नीचे तक पहुंचे हैं, with the left side and the right side being an exact replica of each other. So कितना उसमें आपको skill चाहिए, कितना आपको intelligence चाहिए. So these are living examples. History teaches us that these things were all there. But then there were people, there were patrons, there was a purpose. और किसी को थोड़ा ब्रीफ टाइम ले लेना है. ब्रीफ में पूछ दीजिए. एक दो बैठिए सर, आप बड़ा मत होइए. मेरा डाउट नहीं है, मेरा अपने ज्ञान को. हाँ, इनका परिचय हो गया है. इज अ ग्रामरियन. तो सर, मेरा ज्ञान को समृद्ध करने के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. जो ऐसे उड़ीसा में कई सारे मंदिर हैं जिसको हम लोग खिलान पद्धति बोलते हैं. खिलान पद्धति का मतलब होता है एक पत्थर, उसके साथ और एक पत्थर, उसके साथ और एक पत्थर, ऐसे करके करके ऐसे एक बनाते हैं. उसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतना स्ट्रांग हो जाता है. मैंने को अपने आंखों में देखा हूँ. 1999 का जो सुपर साइक्लोन हुआ था, उसी में कई मकान ध्वस्त हो गए, लेकिन किसी गांव का किसी भी एक मंदिर जिसमें ना सीमेंटिंग है, ना चून है, ना गुड़ है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं हुआ. इसके पीछे क्या है? प्राचीन जो हम लोगों का आर्किटेक्चर है, का जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, वो पावरफुल है ना? नेचर उसको भुला देने में असमर्थ है ना? क्या सर प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है? हाँ. जो आज भी खड़ा है सर, इसी से जुड़ा हुआ पर्सी ब्राउन ने बहुत काम किया है. बिल्कुल. तो वो फॉल्स आर्ट्स और ट्रू आर्ट्स को दोनों आर्ट्स मिले के इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा. तो ये जो बता रहे हैं इस तरह, तो ये ट्रू आर्ट्स जिसको बीच में एक स्टोन होता है और बीच मिडिल स्टोन और दोनों तरफ से वो कंप्रेशन या क्या आप बोलते हैं, तो मुझे उसको समझ में आया था. शायद ये वही टेक्नोलॉजी होगा, वो कंप्रेशन और तो आपका प्रश्न का पार्शियल उत्तर तो आपको मिल ही गया है. हाउ टू स्पैन लॉन्ग डिस्टेंस. आज एक 5 स्टार होटल में आप चले जाएंगे तो आपको
without a column you have very large span halls, ठीक है ना? तो वो लार्ज स्पैन हॉल्स जो है वो पहले जमाने में नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ एन आर्च. आर्च कैसा खड़ा होता है? सो there is a central piece of a stone which so the force on this side is countering the force on this side, so both are countering each other. So that is how the arch is standing. Similarly, when a big wall is constructed, there is something called a flying buttress. अगर आप पेरिस में जो फेमस चर्च है देखेंगे तो वहां पे फ्लाइंग बट्रेसेस का इस्तेमाल किया है to have very strong tall walls which don't fall down. So these are the technologies which have been used in the past. They can be used now also. Like why buildings on the hills don't collapse when there is an earthquake, but modern buildings are collapsing in the hills. वो इसलिए क्योंकि वो हिल में वो पत्थर को सीमेंट नहीं करते हैं. So it is like a shock absorber. जो गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, जब शॉक होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो वो पत्थर के ऊपर पत्थर बना के जो पहाड़ों में बनाते हैं, जब पूरा हिलता है ना तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इसलिए वो पहाड़ों में जो पुराने जमाने के जो मकान बने हैं, they don't collapse. But today we are building rigid structures. So when the rigid structure is made, the entire structure will start moving, and like one entity. Whereas here, the entire structure will not move like one entity. So these were the principles which they have used there. So if you can use these even for smaller buildings. किसी भी मंदिर में अगर हम लोग जाते हैं, किसी भी प्राचीन मंदिर में जब जाते हैं, उसी में मान लिया कि लोग शिक्षा के लिए जो पेंटिंग वगैरह होता है, जो खुदाई करके करते हैं, लेकिन मन में सर कभी कभी प्रश्न होता है, जो एरोटिक सीन सब वहाँ रहता है, जो पिक्चर रहता है, उसका 2-3 रीजन हम लोग आकलन कर सकते हैं कि उसका क्या कारण हो सकता है. और कुछ भी तो दिया जा सकता था, लेकिन काफी एरोटिक सीन रहता है. इसका सर क्या कारण हो सकता है, थोड़ा अगर आलोचना करें. हाँ, तो देखिए सिर्फ एरोटिक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ. हाँ, तो कुछ मंदिरों में eroticism is more pronounced, but it is describing so many things. And one of the basic without the union of the male and the female, there is no population, there is no society. So वो भी एक चीज है. And then how do you control your senses to achieve the higher? That is also another thing. So ये अलग-अलग कारण, many different reasons have been attributed to this as to why these things are there. This is also to give a narrative of what life is all about. तो बहुत सारी चीजें आप कोणार्क में जाके देखेंगे तो वहां पे तो मेन वो पूरा, लेकिन तो और भी चीजें हैं. पत्थर के नीचे लोहा मिलता है, पत्थर में वो बोलते हैं उसी को खींच के रखा, जब वो ले लिए तो लीजिए कोलाप्स करना. और एक डाउट है जी, मैंने एक नया भवन बनाया, कोई वास्तु जो पंडित आ गया, आपका ये दोष है वो दोष है, आप ऐसा करो कि एक मूर्ति वहाँ सारे ठीक हो जाएगी. इसमें कुछ साइंस है क्या? हाँ, ये इसमें मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेडिशनल साइंस है, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, इट इज नॉट क्यूरेटिव इन नेचर. आपका ये जितने भी चीजें हैं, इट इज ऑल प्रिवेंटिव. In fact, our entire Sanatana Dharma is based on prevention, not cure. आप जिस ढंग से अपना जीवन को चलाना है, किस तरीके का खाना खाना है, जब सीजन चेंज होता है तो किस तरीके का आपको घर में बनाना चाहिए, तो ये सारा रूल्स जो है, ये सारा प्रिवेंशन के लिए बनाए हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक हो. लेकिन जब आप ये सारी चीजें आप वायलेट करके आप करोगे तो फिर उसको वापस लाइन में लाना वो बहुत कठिन चीज है. और ये जो यहाँ पे शंख लगाइए, यहाँ पे कुछ और करिए, तो टू सर्टेन एक्सटेंट स्वस्तिक, तो ये अलग अलग रेमेडियल, तो it may contribute to a certain extent. There is also something called a placebo effect.
एक मेडिकल साइंस में देयर समथिंग कॉल्ड प्लासिबो इफेक्ट. प्लासिबो इफेक्ट ये है कि कई लोग यहाँ पे फेथ हीलिंग भी कहते हैं. तो आपको कोई, आप किसी को बहुत मानते हो, आप उनके पास चला गया, सारा आपका प्रॉब्लम सुनेंगे वो, और फिर आपको कुछ बताएंगे, एंड आपका काफी हद तक आप क्योर हो जाओगे. दैट इज कॉल्ड अ प्लासिबो इफेक्ट. कई बार डॉक्टर जो है ना, आपको एक मल्टीविटामिन पिल्ली दे दिया आपको, और वो ये कहेंगे 3 दिन, सुबह एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, उसी समय पे आपको लेना है. यू विल डेफिनेटली बी क्योर्ड. और आपको इतना फेथ है उनके ऊपर कि वो क्यूर भी हो जाते हैं. देयर इज वन डॉक्टर हेगड़े who will tell you a lot of speeches of his on the placebo effect. तो कुछ वो भी है इसमें. और जो anybody join with us through YouTube or Google Live, if any doubt, please ask. Thank you. Your research students are coming to. Thank you. जो रिसर्चर्स है, मेरा एक गुजारिश है उनसे कि ये सब्जेक्ट में बहुत सारा रिसर्च करने की जरूरत है. बिकॉज certain principles have been laid out in the texts. Are these principles working or not? Or this is all humbug? ये हमें कैसे पता चलेगा? Modern day, many of the youngsters, many elders also, they want to know. So you have to go and do research, take case studies of 10 buildings, 15 buildings, go and talk to the families. कई लोग अपना बात नहीं बताएंगे, लेकिन उनसे पूछ के आप पता कर सकते हैं कि आपका घर में ऐसा कोई घटना हुआ है क्या, और उसका घर का प्लान का उसका क्या तालमेल है. तो एक एम्पिरिकल रिसर्च वर्क करने का बहुत आवश्यकता है. ये करने से maybe we will be able to re-establish our principles. इसमें जो डायरेक्शंस की बात है, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ, संसार लोगों का ग्रंथ उठाता है. तो जैसे जो कौन की बात है, कौन के साथ जैसे ईशान कौन, तो ईशान कौन का जो लेफ्ट साइड हुआ नॉर्थ, वो बुद्ध का दिशा, और जो राइट साइड हुआ राइट फ्लैंक, वो ईस्ट, वो सूर्य का दिशा. तो सूर्य और बुद्ध के कंजंक्शन में जो ईशान कौन बना, उसमें ज्योतिष बोलता है कि वो बृहस्पति की दिशा. उसी तरह से इधर कोण में सूर्य और मंगल के कोण पर हम देखते हैं कि वो अग्नि कोण बना, उस अग्नि कोण में वो शुक्र की दिशा मानते हैं. इसी तरह लाइकवाइज तो जो जैसे नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा का माना गया या साउथ वेस्ट का राहु का माना गया, तो ये जो मान्यताएं हैं, मुझे लगता है कि रिसर्च के साथ बताया ये और भी लिखने की चीज है, इसको कंबाइन करके कोशिश करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं पहले से इसमें भी कहा हूँ, कई और जगह पे भी मैं कहा हूँ. ज्योतिष ज्ञान और वास्तु ज्ञान, इन दोनों को आप पूछ लीजिए. ठीक है, ये आपका मकान है, आपने ये मकान कब बनाया? कहेंगे मैं 1995 में बनाया. फिर उनका जन्म कुंडली ले लीजिए, 1995 में इनका कौन सा दशा चल रहा था, इनका हॉरोस्कोप में 4th हाउस में क्या है, 9th हाउस में क्या है, मार्स कहाँ पे है, कौन सा एक्सॉल्टेड है, कौन सा डेबिलिटेटेड है, ये सारा प्लैनेटरी कंजंक्शन वो भी देखना पड़ेगा आपको कि कब आपका ग्रह योग है, कब आपका ग्रहनाश योग है. तो ये सारा, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंडियन जो है ना, ये अंग्रेजों ने आके ये सब कैटेगराइज कर दिया. इंडिया में ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं, ये सब इकट्ठा देखने का है, एक इकोसिस्टम. तो ये सारा जानना बहुत जरूरी है. एक ही प्रॉब्लम तो अभी फेस कर रहा था. कुछ लोग है ना, हमारा जो शास्त्र में जो लिखा है उसको मिसयूज भी कर रहा है. बहुत ये थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये वास्तु बोल के, ज्योतिष बोल के ये करना, आपको डराते हैं. फिर आपसे जो थोड़ा साइंटिफिक भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. सब जैसा करना है, इसमें रिसर्च होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए.
ठीक है, बाकी आदरणीय इस महाविद्यालय परिवार के यशस्वी अभिभावक, हमारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रभात वेदांत केसरी आचार्य सुब्रमण्यम शर्मा जी, इस महाविद्यालय परिवार के हम लोगों का सतत संरक्षक, हम लोगों का अभिभावक, हम लोगों का अध्यक्ष, हम लोगों का परिपालक, हम लोगों का सुख एवं दुख का साथी हैं, हमारे प्राचार्य जी, यशस्वी प्राचार्य जी, प्रोफेसर उमेश कुमार मिश्रा जी। आज महाविद्यालय परिवार में इस महानुभव का पदरेणु महाविद्यालय परिवार को प्राप्त हुआ है, न केवल भारतवर्ष में अपितु अखिल विश्व में जो भारतीय वास्तुशास्त्र का यथार्थ प्रसारक रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में, किसी राजनीतिक दल का सर्वबृहत विश्वविख्यात भवन बनाने में जिसका यशस्वी हाथ का कमाल है, वो है हमारे सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य प्रोफेसर राव जी। जीवन में हर व्यक्ति को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, बिना परीक्षा देते हुए कोई जिंदगी में पास हो फेल हो नहीं हो सकता है। इसीलिए इस जिंदगी का जो परीक्षा चक्र है, उसी का जो प्रतीकात्मक हमारा विश्वविद्यालय का परीक्षा तंत्र, उसी का जो सफल परीक्षा तंत्र का निर्वाहक है हमारे यशस्वी परीक्षा परिचालक आचार्य पवन जी हैं। यहाँ महाविद्यालय परिवार में उपस्थित हमारे समस्त यशस्वी अध्यापक वृंद हैं और मेरे प्यारे छात्र छात्री हैं। सबके ओर से आज हम लोग हमारे जो आदरणीय अतिथि हैं, साथ तो हमारे परिवार के हैं, इसीलिए सार को बाकी हम धन्यवाद तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हम लोगों के ऊपर ऐसे ही हमेशा रहे। लेकिन जो तो हमारा महानुभाव आज आए हैं, सार भी आज से हम लोगों का वही गए परिवार के सदस्य हैं, तो महाविद्यालय परिवार के ओर से समस्त महानुभावों को हम महाविद्यालय परिवार का सश्रद्धा प्रणाम निवेदन करते हैं। आपका शुभ आगमन इस तरह हमारा महाविद्यालय परिवार में होते रहे, यही विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री आचार्य जी का आदेश पालन करते हुए हम हमारा जमीन देखा है, हम 2 एकड़ जमीन देखा है। हमारा जमीन इतना छोटा सर भी आ गया है। राष्ट्रपति भवन जैसा ऐसा कल हमारे लिए भी एक जल्दी मिल जाते तो अच्छा है।